पहली बात तो ऐसा है कि नॉट एवरी क्वेश्चन कैन बी मेड राइट, मतलब जैसे वो नॉकटर्नल वाला जो है वो आई स्कोर्ड प्रीटी गुड मार्क्स इन इन दिस ईयर इन प्रीलिम्स लाइक 125 के अराउंड थे कुछ, तो वो क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, उसमें सब क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। सेकेंडली जो वो वाला क्वेश्चन आपने बोला 2022 का था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, वो मैं सही करके आया था। और मैंने जो कोर्स लिया उसका एक तरीका होता है कि जो मैंने अपना एक जो कोर्स लिया है मैंने उसमें मैंने बोला था चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस में जनरली ऐसा होता है कि व्हेन एनीथिंग और एनी बॉडी, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, अगर उसको किसी किसी एस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्टिंग इन एनी वे, दैट स्टेटमेंट इज जनरली रॉन्ग। क्योंकि यूपीएससी इज अ गवर्नमेंट बॉडी, उसका लॉजिक है यूपीएससी गवर्नमेंट बॉडी है, वो किसी और गवर्नमेंट बॉडी को जो है वो इनकैपेसिटेट नहीं करना चाहेगी। अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ओवरवेलमिंग वर्ड्स, जहाँ पे बहुत ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे कि वेरी वेरी हाई स्टेटस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे करके जहाँ पे आपको स्टेटमेंट सीखेंगी वो स्टेटमेंट्स भी मोस्टली गलत होती है। इफ दैट स्टेटमेंट इज प्रोग्रेसिव स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइंस एस्पेक्ट, वो स्टेटमेंट्स 99% सही होंगे। बहुत ही कम चांस है कि ऐसी स्टेटमेंट गलत होगी अंटिल अनलेस उसमें ओवरवेलमिंग वर्ड्स यूज किए होंगे। अब ये इतना डिटेल में कोई कुछ पढ़ के नहीं जाता है सर्वे को, कि थोड़ा बहुत ऊपर से आइडिया होता है आपको, बट नो वन रीड्स इन डिटेल। बट स्टिल पीपल आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर एग्जाम टाइम। तो कैसे होता है वो, कॉमन सेंस की बात होती है। Hello, dear students. I am Rishan Hashmi, Senior Program Lead at Civils Daily. And today I have with me Divyang Gupta, IPS, UPSC CSE 2022. Guys, I and Divyang are holding this webinar for you guys with a very particular reason. Today, Divyang will be discussing 14 questions with you. 7 of them will be PYQs, past year questions, and the other 7 questions would be practice questions asked in Civils Daily tests earlier. Now, what Divyang will be doing after explaining the thought process used by the paper setter at UPSC, or after explaining the thought process that we need to have in the examination hall, he'll give you 1 minute or 1.5 minutes for every practice question. You are expected to solve those practice questions in real time. And when you are done solving all those 7 practice questions, Divyang will be revealing the correct answers and the thought process that you were expected to employ and how far were you expected to employ that thought process. Guys, now this is an exercise to understand the relevance of logic, common sense, ability to take pressure in the exam hall, in the exam scenario, your understanding or assessing your risk-taking appetite, and so on. Guys, I had made this reference earlier in my previous sessions. I won't repeat it. The reference to Dronacharya and Arjun and how both perspectives help you. Guys, in my previous versions of Dominant Prelims, I was single-handedly taking care of the Dominant Prelims program, but in the final batch of Dominant Prelims, Divyang will be playing a very important role where he'll be taking live sessions, also providing you with his program that he had recorded for you guys. Guys, this is such an interesting opportunity where you get to know the perspectives of not only the mentor but also the ranker. मेंटोर की बात तो आप हमेशा सुनते हो, मेरे कई सारे फ्री वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां पर मेरे लर्निंग्स फ्रीली आप लोगों में से कई लोगों ने देख रखे हैं. बट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दिव्यांग्स पर्सपेक्टिव एंड दिस इज द एफर्ट टू कम टू दैट सिंथेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस. आखिर में उस कॉन्वर्सेशन से जो सिंथेसिस बनकर निकलेगा, दैट वुड बी समथिंग वर्थवाइल which will genuinely help you boost your score in the upcoming prelims 2024 exam based on your own blind spots. मैं blind spot की क्यों बात कर रहा हूं? Guys, many students among you are such who have been putting rigorous effort. मेहनत बहुत कर रहे हो, साल भर पढ़ रहे हो, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, मॉक टेस्ट दे रहे हो और जो करना चाहिए सब कर रहे हो. Still you are stuck at a saturation point of 70 to 80 marks. वो threshold आप पार नहीं कर पा रहे हो despite putting all the efforts. So there comes the relevance of learning this logical and paper solving approaches
commonsensical approaches, basically. Let me tell this before I come to Divyang and before I ask Divyang to speak. Guys, let me make this clear in the very beginning. This course is only for those students who have completed their initial iteration, मतलब syllabus पढ़ रखा है and आप revision कर रहे हो, mock test दे रहे हो, or at least you are somewhere on that line. बिल्कुल beginner आप नहीं हो. But at the same time, guys, this course is not at all for those students who think in that old school way, who still are in that old school mentality कि knowledge और ज्ञान परम ब्रह्म है, सिर्फ आप पढ़ते जाओ till infinity and you will crack the process. If you see past year papers of 2022 and 2023, just being a bookworm, किताबी कीड़े बने रहने से हमारा क्लियर होना, हमारा एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. एंड दैट्स वन रियलिटी चेक दैट वी नीड टू हैव इफ वी स्टिल थिंक दैट बस सिलेबस बस कंप्लीट करना है, किताबें पढ़ते जाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है. फाइन. सो किसके लिए ये रिलेवेंट है, किसके लिए रिलेवेंट नहीं है, ये हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है. दिव्यांग, welcome to the webinar. Before we come up to the questions that you have collated for the students, you can add something in the beginning that you want to convey to the students, and then we'll start. Thank you, sir. I think you have you have already given a disclaimer कि this program will not be for those जो अभी एकदम ही नए हैं preparation में. It will be for those जिन्होंने already 2-3 iteration किए हुए हैं. Because मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है कि there is no logic without knowledge. So first you need to have the knowledge, तभी आपका क्वेश्चन निकलेगा. ये आपको हेल्प करेगा फ्रॉम 80 to 100, 80 to 110, लेकिन 80 तक लाने के लायक आपको खुद बनना पड़ेगा. when you will go through the basic books which you have which are recommended by various toppers, तो वो आपको पहले वेल वर्स्ड होना पड़ेगा. उसके बाद ही जो है वो आप इस कोर्स का कोई भी फायदा उठा सकते हो. सेकेंड इज दैट कि जो मैं चीजें बताऊंगा, जो भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, वो they will not be applicable 100%. I accept it. I have said it before that prelims is a game of probability and not any surety. कोई गारंटी नहीं होती है उसमें. जो मैं टेक्निक्स मैंने बोली हैं, जो मैं बताऊंगा, वो अराउंड 70-80% क्वेश्चंस के यूपीएससी के क्वेश्चंस में लगती है. बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें 20-30% क्वेश्चंस जहाँ पे वो नहीं भी अप्लाई होगी. तो आपको वहाँ पे रिस्क लेना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, which will come when you will analyze the UPSC PYQs and you will go with that mindset कि बाकी लोग भी अप्लाई कर रहे हैं. If you will not apply that logic, you will be left out. तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा थोड़ा. So I think यही डिस्क्लेमर मैं पहले से आपको बताना चाहता हूँ before proceeding ahead. So that's it, sir. यही मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ. फाइन दिव्यांग. सो दिस इज अबाउट दिव्यांग, दिस इज अबाउट मी. कोई नई बात नहीं है, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो, तो उसको रिटरेट नहीं करेंगे. अच्छा, दिव्यांग के बारे में बस मैंने रैंक बताई, सर्विस बताई, आईपीएस. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आल्सो एन आईआईटीएन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर. फाइन. लेट्स क्विकली मूव towards the questions. But one more thing that needs to be mentioned, guys. These are the program inclusions which Divyang and I will be conducting for you. Number 1, Predict Prelims workshop. उसके आपके recorded sessions मिलेंगे 10, roughly 2 hours each. 20 hours के वो sessions हो जाते हैं. Logic Booster workshop 3 hours each, roughly 30 hours इसके हो जाते हैं roughly. Then you also have Prelims Top 1% module by Divyang. That is somewhere around 10 to 12 hours, 5 classes hai. Then Divyang and I will also be conducting live Zoom sessions with you guys. Overall 6 live Zoom sessions honge. One-on-one mentorship and UPSC level full length tests. And at the end of the session, guys, we'll be announcing an early bird concession for the next 24 hours. Let's quickly move now towards questions. And as the theme says, as you can see on the screen, taking your prelim score from 80 to 110 using common sense and risk taking.
which is innate to us as human beings. कॉमन सेंस हम सब में होती है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट हम सब में होती है, बट मेकिंग दैट स्पेसिफिक टू यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट इन जनरल एंड इन मोर पर्टिकुलर प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में उसको किस तरह से डेवलप करना है और यूज करना है, हम आज सीखेंगे और आने वाले सेशंस में सीखेंगे. यस दिव्यांग, यू कैन टेक अप द क्वेश्चन प्लीज. ओके, सो बिफोर मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ. सो अराउंड 7 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम पीवाईक्यूज इन व्हिच आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द common sense techniques or logic which applies in UPSC questions. After that, there are 7 questions which you will have to do by yourself. So this is a very interactive type of session. इसमें ऐसा नहीं कि मैं ही आपको बताऊंगा. So you will also have to solve those questions in real time, and then you will have to post your answers here. So उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे ये इसी लॉजिक के बेसिस पे, जो मैंने लॉजिक बताऊंगा उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम सम नॉलेज एज वेल. नॉलेज लगेगी. So that will also give you an idea कि आप अभी कितना prepared हो इस एग्जाम के लिए. So be attentive मैं जो बोलूँगा, because उसके बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है. So let's start. तो ये टेक्निक ऐसी है, ये वाला यूपीएससी के क्वेश्चंस में जनरली ऐसा होता है कि व्हेन एनीथिंग और एनी बॉडी, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, अगर उसको किसी एस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्टिंग इन एनी वे, that statement is generally wrong. क्योंकि यूपीएससी इज अ गवर्नमेंट बॉडी. उसका लॉजिक है कि यूपीएससी गवर्नमेंट बॉडी है, वो किसी और गवर्नमेंट बॉडी को जो है वो इनकैपेसिटेट नहीं करना चाहेगी कि यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग और यू आर नॉट अलाउड टू डू सर्टेन थिंग्स. ये इन जनरल 90% ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है जिसमें उनको ऐसा शो किया जाता है कि दे कैन नॉट डू सर्टेन थिंग, वो गलत होती है. तो इफ वी रीड दिस क्वेश्चन which is with reference to the Constitution of India, consider the following statement. First is, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. So जो मैंने बोला कि this is like an incapacitative, कि मतलब उसको उसकी पावर छीन ली उन्होंने, कि हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, जुरिडिक्शन ही नहीं है. So ऐसी स्टेटमेंट गलत होगी. Second is, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. तो ये भी गलती है. जुडिशियल रिव्यू जो है वो ऑब्वियसली होता ही है. So in this way we will arrive at an answer कि 2 only is the correct answer. So this is one technique. Next question. Yeah. Again ये एक और उसी लाइन पे क्वेश्चन है कि with reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of her right. So again in this you can see that this is a form of negative statement with respect to government governance or administration, that that they are denying a particular, they are making that body incapacitated. So again this statement, this is a 2023 question, so 2022 question I guess, and this I attempted it there only, and so I made this statement wrong. Second is, state governments have their own prisoner release on parole rule. So this is a general statement. We know that state police is a state government subject, so obviously it's, they can make laws on that. So answer will be 2 only. Now next technique. Yeah, guys, please pay attention. You'll have to solve. I'm saying this for those who are joined late. You'll have to solve some practice questions in real time based on the learnings that Divyang is sharing now. Okay, yes, Divyang. By the way, I can also see some of my students who are already enrolled in previous programs. They are participating quite enthusiastically. I can see Tanishk and I can see some more folks. Good to see your enthusiasm, guys. Yes, Divyang. Yes, sir. So another technique or another common thing which follows in many of the UPSC question is that कि जब भी ऐसी चीजें आती हैं कि this applies in all of the scenario, this overwhelming words use होते हैं कि particularly, completely, ऐसे करके बहुत overwhelming words use होंगे जहाँ पे आपको डाउट आना चाहिए that this might not be true, this statement has a high probability of being wrong. So वो आपको वहाँ पे cautious होना पड़ेगा. You will have to you should become cautious and you should examine कि ये सही हो सकता है क्या. Mostly 90%, 99% वो गलत होता है, because there is in humanities it is very difficult to come up with a certain thing which is applicable for 100% of the cases. तो उसका logic ये है
अगर एक केस भी ऐसा निकल के आ गया जहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू, जहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो वो फिर अगर उसने लेट्स से यूपीएससी ने उसको सही बोल दिया, बट कोई बंदे ने बोल दिया कि नहीं इस केस में ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होती है, तो फिर जो है वो पीपल विल कम एंड प्रोटेस्ट नियर यूपीएससी कि आपने जो है वो उसको इसका आंसर गलत कर दिया है। तो ये लॉजिक है उसके पीछे। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा बहुत ही ओवरवेलमिंग वर्ड्स दिखे ना, ऑल, कंप्लीटली, ड्रास्टिकली, ऐसे करके, वहां पे जनरली दे आर रॉन्ग। सो पहले स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे, so that is कि in the case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement at MSP is unlimited in any state UT of India. So again, that all I mentioned, तो all cereals तो नहीं होते हैं. So in this way we can eliminate this statement. Then in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at a level to which the market price will never rise. तो ये आपके कॉमन सेंस हो जाएगा, इसमें मुझे बताना नहीं है, ये नॉलेज से हो जाएगा। सो मुझे जो बताना था वो पहली स्टेटमेंट है मेनली, कि ऑल जहाँ पे ऐसे ओवरवेलमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, यू हैव टू बी कॉशियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। या गाइस प्लीज पे अटेंशन, जैसे स्टेटमेंट 2 के बारे में बताया दिव्यांग ने कि हाउ डू यू डिफाइन एब्सर्डिटी और रिलेवेंस ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट। फिजिबल है या एब्सर्ड है स्टेटमेंट, यू डिसाइड दैट बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, आल्सो बेस्ड ऑन योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। यस दिव्यांग, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, सो अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ओवरवेलमिंग वर्ड्स, जहाँ पे बहुत ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे कि वेरी वेरी हाई स्टेटस, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे करके जहाँ पे आपको स्टेटमेंट सीखेंगी, वो स्टेटमेंट्स भी मोस्टली गलत होती हैं। सो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम लोग देखेंगे यूपीएससी का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये नॉलेज वाला भी पार्ट है, प्लस ये भी इसमें पीवाईक्यू का रोल है। इसके पहले जो है वो एक जगह और जो है वो 2015 या 2014 में कंटेम्परेरी वर्ड आया था, एंड दैट वाज रॉन्ग। ये वापस से वर्ड रिपीट किया गया है, दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। बट मैं इस स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट का बोल रहा हूँ कि सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरंदी। सो लाइक जब ऐसे वर्ड आ जाएंगे ना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, हाईली इन्फ्लुएंस्ड, वेरी हाई स्टेटस, सो दीज थिंग्स जहाँ पे आपको लगे कि चार चांद लगा दिए किसी चीज में, वो स्टेटमेंट के गलत होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। सो इफ वी सो इन दिस केस जो है वो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, तो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 and 2। ओके, यस यस दिव्यांग। यस, सो एक अगेन ये वाला जो मैं बताऊंगा ये काफी लोग को ऑलरेडी पता होगा कि कहीं पे भी ओनली लिख के आएगा, ओनली वर्ड होगा यूपीएससी में, तो उसके भी गलत होने के बहुत चांस होते हैं, बिकॉज अगेन लॉजिक वही है कि सिर्फ ओनली वाला वर्ड को अब वो सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं अलग अलग वर्ड से। ये मैंने अपने कोर्स में थोड़ा डिटेल्ड वे में बताया था कि ओनली हो गया, नेटिव हो गया, एंडेमिक हो गया, स्पेसिफिकली हो गया, पर्टिकुलरली हो गया। लाइक दीज आर सम वर्ड्स जो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने बनाए कि बस इसी केस में अप्लाई होते हैं। बट एज जिनको नॉलेज है, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, सब नहीं पढ़ी होगी, तो उसमें पता होता है कि कोई ऐसा ह्यूमैनिटीज इज अ वेरी जेन्युइन थिंग, उसमें ऐसा चीजों को रेस्ट्रिक्ट करना कि सिर्फ इसी केस में अप्लाई होता है, ऐसा हाईली अनलाइकली, मतलब ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है कि सिर्फ उसी केस में अप्लाई होगा। सो दैट्स व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, वहां पे एग्जाम में हर समय लॉजिक आप नहीं सोच पाओगे, यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, कि आपको नेचुरली जल्दी से आप सॉल्व कर पाओ। तो अगर ये वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, with reference to the National Skills Qualification Framework (NSQF), which of the following statements given below are correct? First, under NSQF, a learner can acquire certification for competency only through formal learning. So again, only word आ गया, so that will be this statement जो है वो, ये statement गलत हो जाएगी, this is a wrong statement. And second statement is an outcome expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. So this is a generous statement, obviously skill qualification वाला है, तो vocational और general education के बीच में जो है वो mobility bridge बनाने की कोशिश होगी। So this will happen, this can happen by many things. So we will accept, ये सही मानी जाएगी, इसको गलत करना बहुत मुश्किल है। So answer will be two only. तो ये एक अलग अलग टेक्निक है। Then sir, next. Yeah, guys, I hope you are able to get जो लोगों ने late join किया है, how Divyang has mentioned that there is a red flag in statement 1.
and how statement 2 is very much feasible. मोबिलिटी की बात हो रही है, so it's a progressive statement. कोई strong reason नहीं है हमारे पास statement 2 को eliminate करने के लिए. Okay, so all these are past year questions. Fine. Next question देखते हैं दिव्यांग. So this is also a very generous kind of question कि इसमें जहाँ पे बहुत ही general statements आती हैं कि this can happen, this might happen, this may happen, ऐसे करके words जहाँ पे दिखेंगे ना, they are generally right because मे बी अभी जो है वो चीज ना हो पाती हो, बट लेट्स से 1 साल बाद जो जब तक रिजल्ट आए तब तक वो चीज पॉसिबल हो जाए. आजकल जो है वो वैसे भी चीजें बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट हो रही हैं. सो if that statement is progressive, especially with respect to technological aspect, science aspect, वो statements 99% सही होंगी. बहुत ही कम चांस है कि ऐसी statement गलत होगी until unless उसमें overwhelming words use किए होंगे. So like if we read this statement with this question with reference to furnace oil, consider the following statements. First is it is a product of oil refineries. Second is some industries use it to generate power. Third is its use causes sulfur emissions into environment. So even if there is one case for any of the, like there can be 1,000 cases with respect to furnace oil, but अगर एक केस भी निकल के आ गया जहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट में कभी ना कभी सही हो गई, then एग्जामिनर ऐसी स्टेटमेंट को गलत बना ही नहीं सकता. So in this case all statements have to be correct. So that's why the answer will be D, which is first, second and third. तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जनरल स्टेटमेंट सही क्यों हो रही है, बिकॉज उसको अगर एक केस भी गलत निकल के आ गया जहाँ पे वो सही होगी, वो उसको गलत नहीं बना सकता. तो दैट्स द मेन लॉजिक बिहाइंड जनरल स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट इन ऑल सिनेरियो. Yeah, so this is a very interesting perspective that Divyang is putting, guys. The examiner would not want to attract controversies and would not want to invalidate a question framed by him or her. So that's why the examiner the paper setter will always play safe, and that is a way of looking at the questions using which we increase our chances of getting the question right, despite of not knowing the answer. For example, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हम तो सबको इसका आंसर पता ही था, रिफाइनरीज का प्रोडक्ट है या नहीं, पावर जनरेट होती है या नहीं, बट जो दिव्यांग ने थॉट प्रोसेस बताया है उससे हमारा काम आसान हो रहा है. डेफिनेटली मेक सेंस. यस दिव्यांग. Yes sir. So this question is about common sense. थोड़ा सा है. As per the NSSO 70th round situation assessment survey of agricultural household, consider the following statement. अब ये इतना डिटेल में कोई कुछ पढ़ के नहीं जाता है सर्वे को, कि थोड़ा बहुत ऊपर से आइडिया होता है आपको, बट नो वन रीड्स इन डिटेल. बट स्टिल पीपल आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर एग्जाम टाइम. सो कैसे होता है वो कॉमन सेंस की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड द स्टेटमेंट, Rajasthan has the highest percentage share of agricultural household among its rural household. देखते हैं, अभी पता नहीं राजस्थान में होता है कि नहीं होता है. Second is out of the total agricultural household in the country, a little over 60% belongs to OBCs. अब ये डाउट उसमें रेज होता है because OBCs are OBCs because they are backward. और agricultural land जिनके पास था, they were people from the higher caste. People who were from the Brahmin or from the Kshatriya or any other influential caste or sect. So उनके पास था. 60% अगर OBCs के पास ही होगा तो वो OBC क्यों होंगे, फिर जो है वो बैकवर्ड क्यों होंगे. So that is a common sense कि ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी. थर्ड अगर हम लोग पढ़ें, in Kerala a little over 60% of the agricultural household reported to have received maximum income from sources other than the agricultural activities. अब इसका आइडिया नहीं है, बट अगर सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सो आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, विच इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. तो इस तरीके से मैं आई एक्सेप्ट कि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ओनली 1 ओनली 2 होता है, बट ये आई पिक दिस क्वेश्चन बिकॉज ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था. जो मैंने कोर्स लिया हुआ है, जिसका एक्सेस आपको मिलेगा इस वाले कोर्स में भी, उसमें मैंने ऐसे कॉमन सेंस के बहुत क्वेश्चंस जो है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं जो PYQ से इन्फ्लुएंस थे. तो ये मैंने इसलिए पिक किया है कि कैसे कॉमन सेंस लगा के आप अपने आंसर को जो है वो सही कर सकते हो. कि इतना डेटा किसी को नहीं याद होता है कि 60% जो है वो इससे बिलोंग करता है, 60% जो है वो इनकम यहाँ से आती है, बट बाय यूजिंग कॉमन सेंस लॉजिक आप जो है वो अपना आंसर तक पहुंच सकते हो. So this is another question. Okay, before coming to the practice questions, Lalita, I believe you have attended my sessions
as part of Dominate? Yes, sir. Right? Good evening. Good evening, Lalita. यहाँ पर दिव्यांग ने like Divyang has explained it quite beautifully. उसके अलावा because you have attended the session और आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हो, we have also discussed a few things. प्रोग्राम में दिव्यांग भी काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला है, लेकिन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है स्टेटमेंट 2 and 3 में कैन वी से देयर इज मिररिंग हैपनिंग और देयर आर टू आर्बिट्ररी नंबर्स जो which are not expected to know. Yeah, yes, Or, sir. in such a context, we have learned how do we eliminate one of those given statements and the other statement is most likely to be right. That we have already discussed, right? Yes, sir. And Divyang is adding one more layer of reasoning and understanding to it. Yes, makes complete sense. Now let's come to the practice questions, guys. Yes, Divyang. And time's up. This was the last question. Let's take it from the beginning, Divyang. Yes, sir. So, questions पहले पढ़ते हैं. Consider the following statement in the context of millet. So, millet is score over rice and wheat in terms of amino acid profile. तो वी नो कि जिसको नहीं भी पता है कि वो अमीनो एसिड प्रोफाइल में ऊपर है नीचे है, ये पता होता है कि अमीनो एसिड जो है वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड मिलेट जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. सो अगेन इफ अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव व्हिच गवर्नमेंट इज फोकसिंग, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस अलग ज्यादा हैं. तो इसलिए जो है वो आपको अगर ये चीज नहीं भी पता है देन ऑल्सो यू कैन बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट की बॉडी अगर कोई क्वेश्चन बनाएगी उसके ऊपर या जो लोग बनाएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन दे विल बी पॉजिटिव इन दैट एस्पेक्ट. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा. सेकंड इज मिलेट्स आर वल्नरेबल एंड वाटर इंटेंसिव. ऑब्वियसली गलती है ये, बिकॉज वाटर इंटेंसिव नहीं होता है तभी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है वो. Third is कि making dough and rolling roti with the millet flour is more difficult than with wheat. तो ये तो सबको ही पता होगा, मक्के की रोटी बनाना ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू मक्के की नहीं, जो बाकी जो रोटी मिलेट्स की जो रोटी होती है वो ज्यादा ज्वार बाजरा. हाँ, तो वो ज्यादा मुश्किल होती है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो है वो ओनली टू विल बी द आंसर. Okay. Fine, guys. It would be interesting to know how many of you got it right. Like those who got it right, you can raise your hands. Tanish got it right. Sumit got it right. Ravinder got it right. Sharanya got it right. Lalita got it right. Shubhangini got it right. Guys, all of these are my students already. तो इनमें से एक का मैं ओपिनियन ले लूं, उसके बाद जो स्टूडेंट नहीं है उनका भी ओपिनियन लेता हूं. Guys, please keep your cameras on. Please keep your cameras on. Sonu, you did not get the answer, right? You can unmute, Sonu. What did you answer? Unmute करो. You're on mute. Option number B, sir. B mark किया. Which statement did you choose, Sonu? First and third, sir. फर्स्ट एंड थर्ड तुमने चूज किया, सेकंड तुमने एलिमिनेट कर दिया. सेकंड तो काफी नॉलेज बेस्ड स्टेटमेंट है. सोनू, तुम्हारा फर्स्ट आइटरेशन हो गया, एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं तुमने? ये सर थोड़ा मोड़ा पढ़ा था. यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में गलती होना एक्सपेक्टेड नहीं है. नाउ इफ आई कम टू तनिष्क, क्या मार्क किया था तुमने? सर बी, 2 only. ओके, एंड व्हिच वर दोस? सर फर्स्ट एंड थर्ड. अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं. कैसे मार्क किया फर्स्ट एंड थर्ड, तनिष्क? सो फर्स्ट प्रोग्रेसिव लग रहा था, सिंस गवर्नमेंट वाज एज सर वाज सेइंग, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है तो दैट वुड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो यू नो इट इज बेटर देन अदर क्रॉप्स इन कंपैरिजन जो ऑलरेडी है, तो वो इसके वजह से मार्क किया था. थर्ड सर फिजिबल भी है कि जैसे अमीनो एसिड का प्रोफाइल ज्यादा होगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ज्वारी या बाजरे की रोटी बनाना डिफिकल्ट है, तो वो थोड़ा सा रिलेट किया. और यहाँ पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड फिजिबल भी है. सो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो तुम, घर में जो बनता है वही तुमने देखकर मार्क कर दिया. फाइन गाइस, आप लोगों के पास आता हूं मैं जिन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है. ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिव्यांग, सेकंड क्वेश्चन प्लीज.
So this is about the graphene electronic tattoos. तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि it can treat irregular heartbeats in cardiac patient. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है कैन, जो मैंने बोला था कि प्रोग्रेसिव टाइप की टेक्नोलॉजी में जब भी आए इट इज अ हाई चांस कि वो सही होगी. तो पहली स्टेटमेंट तो सही है. सेकंड इज डेटा कलेक्टेड बाय टैटू कैन बी वायरलेसली ट्रांसमिटेड टू अ स्मार्टफोन ऐप. सो उसमें इफ यू लुक एट इट, तो उसमें दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें जो है ना वो ट्रांसमिट करना इज अभी नहीं तो आगे हो सकता है. दैट इज वन थिंग विच इज पॉसिबल. Third is even with rubbing the tattoo comes off, hence easy to wear anywhere. तो इसमें जो है ना वो इसमें काफी लोग को डाउट हुआ होगा, बिकॉज द मेन इशू इज कि इसमें लॉजिक ये लगेगा कि अगर इतना आसान होता किसी टैटू को हटाना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए भी यूज हो रहा है, फिर जो है वो कार्डियक पेशेंट के लिए भी यूज हो रहा है, तो वो एक सस्पेक्ट, तो दिमाग में थोड़ा वो सस्पेशन तो आता है कि गलत होने की चांसेस ज्यादा हैं. तो वो अगर आप वैसे सोचोगे उसको, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट के गलत होने के चांस मुझे ज्यादा लगे थे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट द थर्ड स्टेटमेंट एंड आंसर विल बी ओनली 2 अगेन. Okay, so statement 1 and 2 are right. Statement 3 is incorrect. Right? That is the answer. Now let me come to Hema. Hema, what did you answer? Sir, I did not answer. उसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था हेमा कि तुम आंसर कर रही हो या नहीं. वो समझ में आ रहा था. बाकी सब किया है, पर ये थोड़ा. अच्छा, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? सर पहले तो कभी ऐसी प्रैक्टिस करी नहीं है, तो थोड़ा पूरा इसको कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत टाइम लग जा रहा है सर. अच्छा, लेकिन अब जब दिव्यांग ने एक्सप्लेनेशन बताया है, रीजनिंग बताई है, तब क्लैरिटी मिली है? यस सर, काफी क्लैरिटी मिली, और मुझे लगता है कि इफ आई प्रैक्टिस दिस मेथड ऑन एन एवरीडे बेसिस सर, विल डेफिनेटली बी एबल टू एस द एग्जाम्स सर. नीड टू प्रैक्टिस दिस एवरीडे सर. ओके, सो दिव्यांग गुप्ता, हेमा गुप्ता, लाइक मदद मिली है दिव्यांग से हेमा को. ठीक है. Yes sir. Surnames apart. सुमित. सुमित has been a student. सुमित, तुमने क्या आंसर किया था? सर माय आंसर इज बी, ओनली 2. लेकिन सर मेरा स्टेटमेंट में गलत हो गया. मैंने फर्स्ट को गलत मार्क किया था सर. अच्छा, बिकॉज something in line. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत नहीं होता. किसी का अगर थर्ड स्टेटमेंट की वजह से गलत हुआ है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज थर्ड इज द डिफिकल्ट स्टेटमेंट. बट फर्स्ट तो मैंने बोला ना कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में जब भी प्रोग्रेसिव टाइप के स्टेटमेंट है तो वो सही होनी चाहिए. Why did you eliminate statement 1, Sumit? because sir I thought the graphene electrode tattoos, because I never thought it would be related to the medical things and all, as I am from the pharma ऐसा मैंने सुना भी नहीं था. but that is the progressive statement. अगर तुम ऐसा करोगे तो लगता है तुम ना कटाओगे एक दिन. हमने क्या डिस्कस किया है क्लास में? मुझे लगता है, मैंने सोचा ये नहीं चलेगा. राइट? ओके, वेरी ब्रीफली तनिष्क, कोई इनपुट है तुम्हारा? सर फर्स्ट एंड सेकंड तो इजीली मार्क कर दिया था. थर्ड में आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स. तो फिर कैसे रिजॉल्व कैसे किया? सर टू बी ऑनेस्ट ये इसमें मेरे को ओनली 3 लगा था, बट क्लैरिटी आ गई. मतलब 1 and 2 तो मेरे को फिजिबल लगा, थर्ड में वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया. थर्ड स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ही गाइस दिमाग में रेड फ्लैग. Exactly. Even with rubbing tattoo comes off, hence easy to wear anywhere. उन्हीं में ही absurd लगता है. Why would you use something that is so difficult to use? लगा रहे हो, निकल जा रहा है, right? So that's where you use your common system. This was a tough question. इसमें अगर थर्ड स्टेटमेंट की वजह से गलत हुआ है तो you should not be worried कि गलत हो गया. तो ठीक है, वो हो जाएगा. काफी लोगों का होगा वहाँ पे. Yes, guys. Let's move to the next question. And Divyang has put a very valid point कि यहाँ पर अगर आपका थर्ड स्टेटमेंट की वजह से गलत हो जाता है, so you need not be disheartened. ये समझना और ये मैच्योरिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है. लाइक हम सोचते हैं कि भाई हम सारे क्वेश्चंस सही मार्क कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क कर देंगे. कुछ क्वेश्चन है जहां पर आप गलत जाओगे, एंड दिस इज वन सच क्वेश्चन जहां पर आप गलत जा सकते हो. यस दिव्यांग. ये दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, आई गेस सबका ऑलमोस्ट सही हुआ होगा. जनरल स्टेटमेंट है सब.
एक Guys, जानबूझ के tough के बाद easy डाला all था those who have marked it right, please raise your hand. Vivek, can you switch on your camera? Rizwana, Surabhi, Shailendra, guys, I can unmute you if you have your cameras on. Or Tej, Vivek, you got the answer right? Yes, sir. What was your thought process, Vivek? So the thought process was simple and straight that some mammals, some reptiles, some plants, some prokaryotes, sir, even one are doing that in particular species or mammals or reptiles, then and that statement will be correct, and hence all of the above will be the right answer. Okay, so pretty straightforward. Divyang, as Divyang said, this is an easy one, and it's more likely that most of you would have got it right. Okay, let's quickly move to the next question then. Otherwise, guys, if you look at it in silos, say for example, if we didn't have that question in the last year's paper, there was this question: some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have bioluminescent properties. That was a bouncer, but students who could keep their calm in the examination hall were able to mark it correctly. जैसे अभी इस स्टूडेंट ने बताया कि अगर एक भी ऐसा मशरूम हो जाएगा जो कि बायोल्यूमिनेसेंट हो या साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज जिसमें हो, then the statement would become right. The same thing applies here. Some mammals are oviparous, some reptiles have a four-chambered heart, some plants have photosynthetic roots, some prokaryotes like a cell wall. Guys, no one is doing PhD in these areas. No one is expected to have such specific knowledge. कॉमन सेंसिकल अप्रोच अभी जो दिव्यांग ने बताई है अप्लाई करेंगे, उसी से आंसर करेंगे. अदरवाइज इसको नॉलेज वाइज आंसर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई होप दिव्यांग, आई थिंक यू वुड कॉन्कर विद मी. यस सर, ऑब्वियसली कोई इतना पढ़ के थोड़ी जाता है वहां पे. लाइक ये सब किसी को नहीं पता होता है. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कॉमन सेंस. वही को लॉजिक है कि एक चीज भी निकल के आ गई तो फिर ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगी. एंड इतनी स्पीशीज अभी तक तो डिस्कवर ही नहीं हुई है. लाइक मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर देयर व्हिच आर नॉट येट डिस्कवर्ड. तो obviously you cannot make this a statement wrong. Certainly. So let's move to the next question, guys. Yes, Divyang. Yes, ये moderate level का question है. This is इसमें first statement पढ़ेंगे. The Animal Welfare Board of India was set up under this act. Actually ये this act वाला जो है वो 1962 का act है, वो शायद लिखना भूल गया होगा. तो ये सही स्टेटमेंट है जिसका ये इसमें थोड़ा सा नॉलेज बेस लगेगा पहली स्टेटमेंट के लिए. Second is the act prohibits the welfare board from receiving grants apart from the government source. अब ये तो obviously prohibit कर रहा है किसी को कि जो है वो prohibition मैंने जैसे बताया कि this is not government body को लेके कभी ऐसी statement जब भी लिखी जाए वो गलत होती है. थर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो act prohibits experimentation on animal. तो अगेन एक prohibit कर रहा है because experiment हमेशा harmful थोड़ी होते हैं animals के लिए. There can be positive things as well. तो इसलिए जो है वो हमें हर केस में प्रोहिबिट नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. फोर्थ इज द एक्ट हैज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एग्जिबिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स. तो ऑब्वियसली वो जो हम लोग सर्कस में जाते थे उस पर हम लोग को पता है कि काफी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग वाला जो है वो उनके ऊपर. तो वो अगर आपको एक्ट का नहीं भी पता है बट कोई ये अगर एनिमल वेलफेयर बोर्ड है तो कोई ना कोई तो काम करता ही होगा उस रिकॉर्ड में. तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो सही होंगी एंड देन सेकंड एंड थर्ड विल बी रॉन्ग. So answer will be only 2. Okay, रविंदर, यही आंसर था तुम्हारा? Yes sir. ठीक है, एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस फॉलो किया तुमने. क्या थॉट प्रोसेस था तुम्हारा? Second and fourth were very regressive statement and first and third were quite progressive statements. Second and fourth were also not compatible with the first and third, so mark only 2. Only 2 mark किया, but which were the correct answers according to you? First and third, the Animal Welfare Board of India was set up under the act, and the act prohibits experimentation on animals. As sir said na कि experiments all can't be negative, they can be positive also. And दिव्यांग, यहाँ पर स्टेटमेंट 3 आप सही बोल रहे हो या 4 सही बोल रहे हो? फर्स्ट एंड फोर्थ सही है. I marked first and third correct. अच्छा, the beauty of this format, how many of the above statements are correct? Only 1, only 2, only 3, all 4.
यू गेट द करेक्ट आंसर इवन इफ योर रीजनिंग अगर थोड़ी हिल भी जाती है तो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड रविंदर को लगा, उसने ओनली 2 मार्क कर दिया, आंसर सही आ गया, ऑल्दो रीजनिंग थोड़ी हिल गई थी, फाइन। अदरवाइज रविंदर, जैसे दिव्यांग ने बताया स्टेटमेंट 4, ये तो हम सब देखते हैं, राइट? एग्जीबिशन, ट्रेनिंग, सर्कसेस में किस तरह से रेगुलेट किया जाता है उनका काम, ये हम सबको पता है। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एयर ऑन दिस। Yes, sir. And prohibition on animals, guys, extremes avoid करना है। some sort of experiment would always happen। इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं गाइस, डेफिनेटली कंसेंट के साथ ही होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फाइन। तो अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स, दैट इज वन लर्निंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दिव्यांग। So this is about coal gas. So first is that coal gas is formed by heating the coal in presence of air. तो ये वाला इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वी नो कि ये एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, नॉट ना कि बिकॉज अगर हवा में आप जो है वो करने जाओगे तो ऑब्वियसली वो भी लॉजिक लगाओ कि कोल गैस जो है वो बन के सल्फर ऑक्साइड का एमिशन बन के वो उड़ जाएगी हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाएगी। तो अगर आपको कोल गैस बनानी है तो यू विल हैव टू डू इट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो लॉजिक भी है और वो थोड़ा कॉमन सेंस भी उसमें लग रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। ऑनेस्टली जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे मीथेन के ऊपर थोड़ा सा डाउट था, बिकॉज लेकिन फिर बिकॉज कोल गैस में बनने के काफी चांस होते हैं, काफी गैसेस हो सकती हैं, तो इवन अगर कुछ भी कम परसेंटेज भी होगा तो भी जो है वो पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही किया। थर्ड इज कोल गैस एंड वाटर आर द ओनली बाई प्रोडक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ कोल गैस डिस्टिलेशन। सो अगेन ओनली आ गया, बाई प्रोडक्ट्स तो बहुत होते हैं, पता नहीं कौन कौन से, काफी तो डिटेक्ट ही नहीं होंगे। अगर डिटेक्टर भी जो है वो लेस देन कुछ कंसंट्रेशन तक ही डिटेक्ट कर पाता होगा, उसके नीचे वाले तो वो डिटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही बाई प्रोडक्ट तो हो भी नहीं सकते। तो अगेन आंसर विल बी ओनली वन इन दिस केस। ओनली वन आंसर रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट सही है। तनिष्क, अदर्स, क्या थॉट प्रोसेस रहा? ललिता? Yes, sir. I could mark two statements as right. Which? First and second. So I got my answer wrong. Because ठीक है। I made first statement right. Otherwise, the thought process on the second and third was right, that it is a mixture. It could be yes. And third statement, only byproducts. It is not feasible. So there could be other byproducts also. Guys, tell me, am I correct in saying the third statement was the easiest to eliminate? Coal gas and water are the only byproducts in the process of coal gas distillation. यहाँ तो समझ में आ रहा है, क्लियर कट रेड फ्लैग दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया। स्टेटमेंट 2, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। ललिता, पता है क्या यहाँ पर किस चीज का मिक्सचर होता है? ये चीजें No, होती sir. हैं? नहीं पता? तो नहीं पता तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा कि स्टेटमेंट? No, sir, no. सो फिजिबिलिटी टेस्ट स्टेटमेंट 2 सही हो सकता है, रिस्क ले रहे हैं स्टेटमेंट 2 के फेवर में। स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर गलती हुई होगी। कोल गैस इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग द कोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये पढ़ने में काफी सीधी सरल स्टेटमेंट लगी होगी, और यहाँ पर कोई रेड फ्लैग आप स्पॉट नहीं कर पाए, इसलिए। लेकिन सर जब ऐसी स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इलैबोरेट मैनर में लिखी होती है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब ऐसे करके उन्होंने अलग से वो बताया ना कि एयर के साथ प्रेजेंस में होगा, लाइक एब्सेंस आपको बतानी इंपॉर्टेंट है इफ वी आर हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बट इफ दे आर मेकिंग इट टू ऑब्वियस और उसको भी मेंशन कर रहे हैं अलग से वो इन यूपीएससी इट हैपेंस, तो वो स्टेटमेंट गलत होती है, बिकॉज दे कुड हैव सेड कि उसको जो है वो एयर के साथ हम लोग हीट करेंगे एंड देन कोल गैस बन जाएगी, तो वो भी एक लॉजिक है। एंड देन ऑब्वियसली कोल को अगर हम लोग हीट करेंगे हवा में तो वो तो नॉर्मली भी हम लोग करते ही हैं एयर के साथ, जब हम लोग करते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ, तो उससे कोल गैस नहीं बनती, कोल गैस का एक अलग प्रोसीजर होता है, तो वहां पे भी आपको थोड़ा डाउट आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी। डेफिनेटली। सो गाइस, यहाँ पर इट्स अ कॉम्बो ऑफ योर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कॉमन सेंस। इफ यू आर हीटिंग कोल, ओपन में आप कोल अगर जला रहे हो, वो धुआं बन के उड़ जाता है, कोल गैस एज सच तो नहीं बनता, ये हम सबको पता है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 आप अगर एंटायरिटी में पढ़ोगे, इट अपीयर्स। सर इसमें जैसे थोड़ा जो है वो अगर साइंस यूज करेंगे ना,
एयर के प्रेजेंस में अगर जो है वो हम लोग हीट कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बनना मुश्किल ही है और मीथेन बनना मुश्किल है। कोल को जब हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर, तो वो भी एक डाउट आना चाहिए लोगों के मन में। Very good. So, guys, Divyang is pointing at the fact that statement 1 and 2 are not compatible. कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, कब जनरेट होती है? ऑक्सीजन कैनॉट बी इन अबंडेंस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रही है। और दैट इज आवर प्री एग्जिस्टिंग ज्ञान, बेसिक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, राइट? कंपैटिबिलिटी। बट गाइस दिस इज रिलेटिवली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट 1 की वजह से आप गलत हो भी रहे हो, स्टिल इट्स डुएबल। प्रैक्टिस के साथ यू विल इंक्रीज योर स्ट्राइक रेट। स्टेटमेंट 3 पर आप बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। Yes, Divyang. Yes. So this is about the NBS, nutrient based subsidy. So first statement पढ़ेंगे कि it is approved only for NPK. तो NPK पता है ओनली आ गया, NPK से ज्यादा भी होते हैं फर्टिलाइजर्स, तो पहली तो इस वजह से गलत हो जाएगी। सेकंड इज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो भी गलत है। दूसरी होती है, और वैसे भी जहाँ पे यूपीएससी का ऐसा है कि जहाँ पे मिनिस्ट्री या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होती है वो गलत होने का बहुत हाई चांस होता है उसका, लाइक 90% ऑफ द केसेस में वो गलती होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट नॉलेज, जिसको थोड़ी नॉलेज हो वो भी हटा देगा कि ये गलत दी हुई है। थर्ड इज की फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स आर गिवन एडिशनल सब्सिडी, तो ये जनरल स्टेटमेंट है कि एक फर्टिलाइजर भी कोई होगा उसको एडिशनल सब्सिडी दे दी, तो गलत करना मुश्किल है इसको। तो अगेन ओनली वन विल बी द आंसर इन दिस केस। Okay, Shraddha, I can see you are attending the session very sincerely from the beginning. What was your answer? Chose option B. Can be only 2. Yes, sir. Because in newspaper I have read that ki nitrogen, phosphorus, and potash only, NPK, and that too in the ratio of I guess 4:1, like that. That is a different concept. That is about the requirement of the soil, which should be 4:2:1. Yeah. So you got confused between natural requirement and the government policy in place, right? Okay. Apart from statement 1, statement 2. Yeah, statement 2 is Ministry of Fertilizer, Commerce, and I guess there is some different ministry. In newspaper I have read that, so मैंने इसको गलती करा। And third is a very general and progressive, so I marked it right. मतलब fortified fertilizers है तो additional subsidy दी जा सकती है। There is nothing. There is a possibility. It's a probability, so I chose it right. Good word, probability. Prelims is all about probability. Probability. Fine, guys. Let's move to the next question quickly. So this is the last question. ये टफ नहीं था, ये भी आसानी है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी पे एप्लीकेशन। सो फर्स्ट इज nanobots can be inserted into the body to repair and replace intracellular structures. So again technology के regarding में progressive statement, so it can be done and it is happening also. Nanofibers can be used in wound dressing and surgical textile implants, tissue engineering. So obviously that is again a progressive sort of thing. Third is it is completely safe to use in the health sector. तो ऐसा completely safe कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, आज तक कोई नहीं बनी जो completely safe हो, तो that is a very extreme statement. तो आप थर्ड गलत होगा, फर्स्ट सेकंड सही होगा, and answer will be only 2. Okay, let me ask this to 1 or 2 students. नए students पर खास तौर पर आता हूँ, who have their cameras on. हमारे पास आता हूँ थोड़ी देर से. Let me come to Hema. मेरे बोलने के बाद तुमने ये आंसर किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. What was your answer? Sir, one only, I guess I did. Okay, you got it wrong. Which statement did you mark as correct? Sir, only one. Statement 1. No, sir, I guess I answered B. Yes, sir. Only 2. Which statements are right according to you? Sir, statement 1 and statement 2 are correct. That's the correct answer. और thought process Yes. क्या था तुम्हारा thought process? सर थॉट प्रोसेस मेरी कुछ ऐसी थी इसके अंदर कि मैंने कुछ समय पहले ना एक न्यूज देखी थी ऐसे ही इंटरनेट पे कि एक डॉक्टर है, आई गेस अमेरिका के कहीं से तो थे वो, उन्होंने एक जब हम खाना खा लेते तो उन्होंने एक छोटा सा कैमरा जो था वो मतलब बॉडी के अंदर उन्होंने
डाला था और फिर पता चला था कि जब हम खा लेते तो फिर उसके बाद क्या होता है। तो मैंने मतलब वो अपनी पहले जो देखा हुआ था मैंने फिर उससे ये अप्लाई किया, ये था सर। यहाँ पर नैनो बॉट की बात हो रही है हेमा। अगर वो ना देखा होता तो कैसे करते फिर? ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, वो फिर कैसे होता है ये क्वेश्चन? सर एग्जैक्टली शायद मैं इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाती। नहीं, ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दीस क्वेश्चंस इफ यू वांट टू क्लियर फिल्म्स। अब एक स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस जानते हैं, जो जिस स्टूडेंट ने पहले क्लास अटेंड कर रखा है। पुनित, पुनित कहाँ हो? हाँ बताओ पुनित, क्या आंसर दिया था तुमने? सर ओनली 2 ही दिया था सर, क्योंकि जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सर काफी ज्यादा कैन बी और कैन बी यूज्ड है, तो वो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है सर इसमें। नैनोबोट्स कैन बी, नैनो फाइबर्स कैन बी, काफी ज्यादा पॉसिबल स्टेटमेंट्स हैं दोनों, हो सकता है। एंड देयर इज नो रेड फ्लैग, लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक उनमें नहीं, देयर इज नथिंग एब्सर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स की जिसको देखकर हम एलिमिनेट करते हैं। हाँ जी सर, जो सर ने कहा कि जो थर्ड स्टेटमेंट उसमें काफी ज्यादा कंप्लीटली सेफ कोई भी चीज नहीं होती कहीं भी। Exactly. Even the mineral water that we drink, that can't be said to be completely safe, right? Yes. 0.01% error होने का चांस होता ही है। ठीक Yes. है, so that's the right thought process, Puneet. Good. So yes, we have discussed the 7 questions. So in the process, guys, we started here. We started with this question. This question 7 PYQs डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए दिव्यांग ने, 3, 4, 5, 6, 7, and these are across the years, guys, across the years. ऐसा नहीं कि we have restricted ourselves to one particular year. The emphasis, the motive was to understand the thought process that UPSC has been following over the years and the thought process that UPSC is expecting us to have. और उसके बाद उन्हीं लाइंस पर हमने 7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे फ्रॉम सिविल्स डेली टेस्ट्स इससे पहले जो कंडक्ट हुए हैं, एंड वी ट्राई टू implement those learnings from those PYQs in these practice questions, and many of you got it right, and even those who got it wrong were able to derive clarity. Like if I ask this to Hema, if I ask this to Nandini, guys जिनको मैं unmute कर रहा हूं, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन और आप अपने इनपुट दे सकते हो। श्रद्धा, हेमा, और मैं नए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, शैलेंद्र एंड वनज। गाइस इनमें से किस क्वेश्चन पर आप गलत हो गए? यू कैन कॉल आउट योर नेम, यू कैन कॉल आउट योर नेम, आई विल अलाउ यू टू स्पीक। यस श्रद्धा, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे इनमें से? फर्टिलाइजर वाला, एक वो फर्टिलाइजर वाला गलत हो गया था। ठीक है, अब क्लियर हो श्रद्धा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यस। एक ही गलत हुआ था, 6, यू गॉट 6 राइट। और भी गलत है, एक और है वाला कोल गैस वाला, ये ठीक है। ठीक है, ये वाला एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सर इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 1962, मतलब आई हैव नेवर रेड दिस 1962, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो पढ़ा है, तो वहां से मैंने ड्राइव करने की कोशिश की, तो मैंने फर्स्ट वाले को गलत कर दिया था, तो बट वो सर ने बताया कि ठीक है, तो ये चीज दैट इज नॉलेज बेस्ड, नॉलेज में थोड़ा वो कंफ्यूजन हुआ। और देखो यहाँ पर गलत होने का एक फायदा ये है क्योंकि अब तुमने यहाँ पर गलत कर दिया, अब एग्जाम में अगर इसी लाइन पर क्वेश्चन आता है, यू हैव दिस इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, अब तुम रिटेन कर जाओगे इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो नॉलेज तुमने डिराइव किया है ये तुमको याद रहेगा। सिमिलरली शुभांगिनी, बताओ क्विकली। सर आई वांट टू ऐड अ पॉइंट इन क्वेश्चन नंबर 6, दोज स्टूडेंट हु आर न्यू, क्योंकि हम लोग ने सर आपकी क्लास अटेंड की है। 6th क्वेश्चन में सर लाइक फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर, तो सर मैंने इसमें एक एडिशनल जो अनहर्ड अप्रोच है जनरली कि हमारे पास में फर्टिलाइजर हमें पता है नॉर्मल, बट फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर के बारे में नहीं पता, तो जनरली जो अनहर्ड स्टेटमेंट्स है दे आर कंसिडर्ड टू बी राइट, सो विद दैट अप्रोच आई गॉट दिस आंसर। यहाँ पर इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, नहीं तो नए स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अनहर्ड अप्रोच क्या होता है। अब आप लोग 9 सेशंस आपके हो चुके हैं, एक सेशन आपका बचा हुआ है, सो यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू अप्लाई दिस लर्निंग्स, बट यस योर थॉट प्रोसेस इज ऑन द राइट ट्रैक।
शुभांगिनी। वनज आप बताओ। यू आर ऑन म्यूट वनज। अनम्यूटेड हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन लगा रखे हैं क्या? नहीं सर, आई एम ऑडिबल नाउ। You are audible and I can see that Iron Man wala complete setup. It's a beautiful setup. Yes, Vanaj. Thank you. Yes sir. Sir, I got the coal question wrong and the millets question wrong. Okay. Millets वाला सर actually मैंने जो third statement थी that I did wrong. That it's more difficult to cope क्योंकि मुझे लगा कि बहुत subjective है, पर हाँ मुझे लगा कि बहुत सब्जेक्टिव है कि किसको डिफिकल्ट लग रहा है किसको नहीं लग रहा है, बट आफ्टर एक्सप्लेनेशन आई थिंक कि कॉमन सेंस से सही कर सकते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा रीजनल क्वेश्चन हो जाता है। आर यू फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया वनज? यस सर, आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया से हो, सो उस वजह से ये कभी कभार अगर इस टाइप के रीजनल ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है उस रीजन वाले लोगों को। बट ये हर साल होता है, कभी किस रीजन स्पेसिफिक आएगा, कभी किस रीजन का स्पेसिफिक आएगा। से फॉर एग्जांपल जीआई टैग पूछ लिए किसी स्टेट से, तो उस स्टेट के लोगों को ज्यादा पता होने के चांसेस होते हैं। फाइन, तो ठीक है। दीज आर आई हैड जस्ट सर मेरा बस एक क्वेश्चन था आपसे या दिव्यांग सर से। सर मैं आपकी अप्रोचेस फॉलो कर रहा हूं, मैंने सर के भी वीडियोस देखे हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है सर उसमें आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। जैसे कि जहां पे वो एजेंसी की बात आती है, फॉर एग्जांपल लास्ट टू लास्ट ईयर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वाला क्वेश्चन था, या फिर कौन सी एजेंसी कहाँ पर करेक्ट है वो वाले, या फिर जैसे लास्ट ईयर सर 2023 आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स इन 2023, मेरा मेंस आगे क्लियर नहीं हुआ सर। उसमें जैसे क्वेश्चन था कि कौन से एनिमल्स नॉकटर्नल हैं और कौन से नहीं है, तो वहां पे जब लाइक आई एम नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइस, तो सर वहां पर अगर आप कोई ट्रिक्स वगैरह बता पाए तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल कि एजेंसीज में क्या करेक्ट होता है क्या करेक्ट नहीं, या फिर कोई अगर ट्रिक्स एक्सेट्रा है वहां पे। Vanaj, now this is a nuanced thing that you are speaking about and it's a very valid thing. लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारे क्लासेस मेरे अटेंड कर चुके हैं और कुछ क्लासेस अभी बाकी हैं, उनको पता है कि दिस इज सच अ क्वेश्चन व्हिच डोंट हैव अ सिंगल आंसर एंड इट डजंट हैव एन इजी आंसर। व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, फाइन, यू विल बी एबल टू डिड्यूस द आंसर। अभी मैं वर्बली अगर मैं कुछ बोल दूंगा ना, दैट विल बी अ वेरी सुपरफिशियल थिंग और उससे आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे। और दिव्यांग भी जो आपको सिखाने वाले हैं वर्बली अगर बोल देंगे तो अगेन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। फाइन, उस प्रोसेस से आपको जाना होगा, देन दैट विल मेक मोर सेंस टू यू। आई होप मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, these guys will conquer with me। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कुछ जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यस दिव्यांग। तो जो क्लाइमेट एक्शन, पहली बात तो ऐसा है कि नॉट एवरी क्वेश्चन कैन बी मेड राइट। मतलब जैसे वो नॉकटर्नल वाला जो है वो आई स्कोर्ड प्रीटी गुड मार्क्स इन दिस ईयर इन प्रीलिम्स, लाइक 125 के अराउंड थे कुछ। तो वो क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, उसमें सब क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। सेकेंडली जो वो वाला क्वेश्चन आपने बोला 2022 का था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, वो मैं सही करके आया था। और मैंने जो कोर्स लिया उसका एक तरीका होता है कि जो मैंने अपना एक जो कोर्स लिया है मैंने उसमें मैंने बोला था चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जो सबसे कम गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें जो है वो आप अगर देखोगे ना तो बाकी 3 ऑप्शन मुझे याद है, वो बाकी 3 ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थे। एक ऑप्शन काफी ब्रॉड था और वो मैंने टिक किया था। मुझे पता नहीं था उस समय कि वो सही होगा कि गलत, बट मैंने ये लॉजिक लगाया था वहां पे और वो वाला आंसर सही था। तो आप अगर जैसे ये वाला कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा कि वाइडर ऑप्शन कैसे सोचते हैं, तो इट माइट हेल्प यू। एग्जैक्टली। अभी सुनने में थोड़ा सा सब्जेक्टिव और थोड़ा सा वेग लगेगा कि हाउ डू यू डिसाइड व्हिच ऑप्शन इज। हाँ, वो जब तक एग्जांपल नहीं देखोगे तब तक अजीब लगता थोड़ा। नहीं सर, मैंने आपकी YouTube पे जो वीडियो थी सेकंड सेशन की वो मैंने देखी थी और उसमें मुझे समझ भी आया था आपका सर वो वाइडेस्ट ऑप्शन वाला, लाइक इट वाज अ रियली गुड। और उसके बाद मेरे स्कोर्स भी इंप्रूव हुए जैसे जब मैंने PYQs किए। एक और क्वेश्चन था सर ये एजेंसीज वाले में, जहां पर जैसे जहां पे सिर्फ नैरो ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल एक IUCN है, एक UNEP है, इसी तरह के ऑप्शंस है जिनकी एजेंसीज के नाम सुने हैं, वहां पर इज इट लाइक कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड या फिर वहां पे भी कुछ होता है कि फाइनेंस का है तो इसका लग सकता है या नहीं? एंड थैंक यू सो मच, लाइक आई वोंट आस्क एनीथिंग आफ्टर दिस। देयर इज नो वन आंसर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जनरली मैंने जो देखा हुआ है एनवायरनमेंट वाले में वो ऐसा होता है कि अगर कोई एजेंसी मेंशन होती है, अननोन एजेंसी मेंशन होती है तो वो गलत होती है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो डिपेंड करता है, तुमने सुना होगा तो आप सही कर दोगे ऑब्वियसली, नहीं सुना होगा तो यार वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे मैं हवा में ऐसे बोल नहीं सकता, वो क्वेश्चन देखने के बाद ही आइडिया लगेगा।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच. We'll take your doubts, we'll take your inputs, and I would request my team to share the 24-hour window wala early bird concession. Guys, those among you who want to enroll in this program, you can enroll using that link through which you'll get an early bird concession. Let me just check it into the chat box if my team has already shared it. Atul, Pranshu, guys, please share the early bird concession link in the group, in the chat box, so that students can take it from there. Okay, guys, please raise your hand. I'll take up your inputs from the chat box. I'll also allow you to unmute yourself if your cameras are on. सोनू इज आस्किंग हिंदी मीडियम में अवेलेबल है. सोनू, क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. ऑल्सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन हिंदी, वी कैन आंसर दोज इन हिंदी. सेशंस आर बाइलिंगुअल. ओके, Sai Lokesh, you can unmute yourself. What's your doubt? Sir, actually, when it comes to history, no, sir, there are few things which we have never heard of or never read those things, sir. How to tackle those questions in history, sir, particularly in medieval and ancient, sir. Like some books or authors, General Secretary, VM, someone, we never read that, sir. So how to tackle those? Don't have to make all questions correct, na? Like out of the cutoff is going like around 80, 85. So if you Yes, sir. attempt 90 questions and you make around 30 wrong, then also you will be able to clear it with a general category. So don't worry about that. Not every question you can make it right. Some questions are meant Sir, to be. Divyan, sir, how many sessions will be there, sir, with you? Around What's your doubt specifically about how many sessions of what? Yes, sir. How many sessions will be there overall in the module? That's what you're asking. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see, these are, as you can see on the screen, these are program inclusions. Number 1, Predict Prelims workshop, which will be my recorded sessions. 10 sessions honge, roughly 2 hours each. Jisme we'll be using past year questions, and those are the most important areas that we should be working on, sort of favorite areas of UPSC, jahan se from where UPSC is asking questions repetitively. We'll be working on those. Then you have the Logic Booster workshop. The other students who are answering the questions quite swiftly, these are already part of my previous batches. So you'll have recorded sessions, 10 recorded sessions, roughly 3 hours each, 30 hours of those Logic Booster workshop. Then you have Prelims Top 1% module by Divyang sir, which are 5 classes, which would amount to roughly 10 to 12 hours each. Then you would have 6 Zoom sessions, which will be live by Divyang sir. I will also be present in those sessions, where Divyang will be making you practice the way we have practiced in this session. He'll be making you practice live in the sessions, and he'll be taking your doubts, your inputs in real time. Apart from that, you'll have one-on-one mentorship and access to 10 full-length tests. So this will be the deliverables as part of the course. Sir, to be frank with you, I've seen few of your YouTube videos, sir, and I thought 2023 में तो एलिमिनेशन खत्म हो गया था, या कुछ भी बोल रहा है तो वर्कआउट नहीं होगा, नहीं ज्वाइन करना है कोर्स अभी. I thought all those, sir. In the initial stages. I only get part of your question. You said 2023 के बाद एलिमिनेशन खत्म हो गया था, लोग ऐसा बोल रहे थे कि एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. YouTube में वीडियोस देखा था सर आपको. I've seen your YouTube videos of 2022, sir, and I've decided, okay, maybe sir's course have worked out in 2022, but in 2023, sir's course will not work out. नहीं लेना. Then I realized, okay, it worked out. अच्छा, you realize that these are working. समाज कुछ और बोल रहा है, दुनिया कुछ और बोल रही है, लेकिन रियलिटी चेक अगर करोगे तो सच्चाई कुछ और है. That's what you're saying. Common sense. Sorry, sir, I was too frank to tell you. That's good. That's good. You're saying, and that's a reality check. Like people are saying something, but when you looked at the PYQs and when you try to attempt the paper yourself, you realize that logic and common sense are something that you need to use. And guys, there is nothing new in this. In our everyday lives, we use common sense.
as human beings, we cannot survive without using common sense. So nothing special in using common sense in the examination hall. Fine. So that's a very. I've seen your one video, sir, where you said contemporary words will always be wrong. Then I've checked previous year questions, sir. Contemporary word, wherever I've seen it was wrong. Contemporary, the word contemporary. Yes, sir. Yeah, so I think that's an old video of mine. Last year. Yeah, sir, old video, sir. It was past video. Then I've checked previous question. It was always wrong. Either it's in history or anyway, it's wrong, sir. Before Okay, Divyang is saying something. I will check that. Sorry, Divyang, you're saying something? My motive is ultimately to help you all. Like, that is the main motive. Why would I speak lie that this will only apply in one case and not in other case? So yeah, and the way Sai Lokesh has said ki after watching my video, he went back to the papers and he found that was applicable in all the cases. अगर ऐसा नहीं भी होता, like it would not be applicable in 1 or 2 cases. Still, guys, the trend stands. जो भी दिव्यांग यहाँ पर बता रहा है, whatever Divyang is saying and whatever I have been saying all throughout this time, okay, this is applicable throughout. That trend is visible. There will always be exceptions, but when you are faced with this choice, you are short of knowledge in that question, and probably you have attempted less number of questions, and you have to take risk compulsorily. These PYQ trends will help you to take those risks. At least you have this clarity of thought that when you are taking risks, you will be taking risk in favor of X trend or against X trend, Y trend, right? So that is what we are doing here. Apart from that, course link. Guys, I'll share the course link in a moment. Please raise your hand. जिसको भी अपना input पूछना है. Hema, you are raising hand. Yes, sir. Yes, Hema. Sir, I will join this course of 2024 Dominate Prelims. And actually, I'm preparing for 2025, sir. Okay. So I need a practice on an everyday basis of these methods only, sir. And I have started believing in this method. If you are giving your attempt in 2025, I would suggest you to go for a holistic year and a half long program. Fine. What you can do, Hema, you can share your number in the chat box and my team will get in touch with you. Fine. Sir, yesterday I filled a form, a Google form, sir, so that your team may connect to me, sir. They'll connect with you. If you fill the form, they'll connect. Fine. Or if you want them to connect on a priority basis, share your number or DM me your number in the chat box. They'll connect on a priority basis. Yeah. Okay. Guys, your inputs. Nandini, if you can switch on your camera, your raising hand. Sir, my question is how to approach for mapping, as we have seen that mapping question is coming very much. So how to approach that? For example, there is question like कि कौन से पार्क किस रिवर पे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं मैपिंग के, तो उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर उसका कोई श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन की कहाँ से उसको कवर कर सकते हैं? ओके, तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर है. यू आर नंदिनी, राइट? श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन तुम मांग रही हो नंदिनी. देखो, जो प्रोग्राम हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस स्टैंड्स ऑन 2 pillars ऑफ योर प्रीलिम्स पेपर. 3 पिलर होते हैं जिसमें से 2 यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, which is your predictive pillar based on your PYQ trends, what kind of questions can be asked, and you prepare accordingly. Another is your logical pillar, common sensical approaches की जो हम बात कर रहे हैं. But the foundational and the first pillar of your prelims preparation is your academic pillar. उसके लिए we had an earlier version of Dominate, जिसमें what आपने यूज किया है short short approach. We had short themes, 20 short themes. One of those which you have mentioned is IR, mapping. Fine. Similarly, we have schemes, species, national parks, 20 most important 20 short themes जिस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है. ठीक है. So those particular themes, उनके ऊपर classes, उनके notes, those were included in it. If you want to go that rigorous, if you don't want to just stick to the logical aspect, predictive aspect, you can also enroll in that one. Share your number, my team will get in touch. Otherwise, यहाँ पर अगर सिर्फ superficially अगर मुझे बोलना है कि maps आपको करना है, I can tell you, or even Divyang will tell the same thing, he will concur with me, कि current affairs आ रहे हैं, न्यूज में आप पढ़ रहे हो,
आई होप यू कैन हियर मी. नंदिनी, आई थिंक तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो गया है. ठीक है, मैं अपना आंसर कंप्लीट कर लेता हूं. करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे हो, गॉन आर दोज डेज की सिर्फ आपने न्यूज़पेपर फॉलो कर लिया या करंट अफेयर्स फॉलो कर लिया और वही आप डायरेक्टली आपको पेपर में पूछ लिया गया. गाइज, यू नीड टू गो अ स्टेप डीपर. से फॉर एग्जांपल IR वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछा जा रहा है. यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि जिन कंट्रीज में वॉर चल रहा है, से फॉर एग्जांपल गाजा इजराइल में वॉर चल रहा है, सो यू नीड टू नो एटलीस्ट द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन. ठीक है, किस कंट्री के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, इफ देयर इज अ मेजर वाटर बॉडी दैट डिवाइड्स और विच इज एडजेसेंट टू दैट रीजन, दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर मैप बेस्ड क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू IR. फाइन. खुद अगर आप कर सकते हो, वेरी गुड गाइज. अदरवाइज मैंने आपको उस कोर्स के बारे में बता दिया है. शेयर योर नंबर, my team will get in touch. And guys, this applies to everyone. This applies to everyone. Whatever learnings are being given here, be it the logic based workshops जो दिव्यांग कंडक्ट करने वाले, जो मैंने पहले कंडक्ट कर रखे हैं, और the academic input जो हम अभी डिस्कस हमने किया है. All these things, guys, if you can do it on your own, nothing better than that. You don't need to join any course. But if you think even after putting in all the efforts, still if you are stuck at a saturation point, then guys, you must be seeking help. As simple as that. That's a very reasonable thing to do. I'll take a few more inputs. Samsung is saying, please connect me. So if you want to connect, you need to share your number in the chat box. My team will take it up from there. Hema is asking, what if I want to join this early bird as an early practice? Will not I lose this offer? ठीक है Hema, एक काम Yes, करो. sir. You share your number. My team will get in touch. Sir, I have text you. Text कर दिया आपने? Yes, sir. Priority basis पर. Sir, Yes, Hema. सर एक्चुअली मेरी क्वेरी ये है इसके अंदर कि मुझे ये ज्वाइन करना है क्योंकि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, तो मुझे है ना किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है. ठीक है, अंडरस्टूड. देखो, आपकी लर्निंग स्पीड एसेस करने के बाद ही आपको इनपुट दे पाएंगे, क्योंकि आपने बोल दिया आप स्लो लर्नर हो, मैं आपको कोई इनपुट दे दूं, दैट वुड बी वेरी सुपरफिशियल थिंग. ठीक है, जब आपसे फोन पर बात होगी, मेरी बात होगी या मेरी टीम मेंबर की बात होगी, तब थोड़ा सा क्वालिटेटिव इनपुट आपको दे पाएंगे. रही बात इस प्रोग्राम की, माय टीम मेंबर विल हेल्प यू विद इट. ठीक है. सैमसंग गाइस, अपना नाम बता दो. यहाँ पर सैमसंग बोल रहा है कि सर आई एम बिगिनर, शुड आई ज्वाइन और नॉट? सी, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर एंड इफ यू आर टारगेटिंग 2025, go for you can think of going for a foundation program. Share your number. My team will also guide you regarding prelims 2025. Sir, one more question, sir. Sir, yes, just Hema. one. Yes, Hema. Yes, sir. सर, ये जो लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम अभी क्लास जो आपने हमें दी है सर, अगर मैं इसे ईयर लॉन्ग प्रोग्राम अगर मैं ज्वाइन करूं, तो क्या ये मुझे एवरीडे बेसिस पे सीखने को मिलेगा? Certainly. See, when you join a year-long program or if you join a foundation program, your in-house mentor assigns you targets which you are expected to complete. Now, that unit might be anything. That unit might be 5 days. That unit might be 7 days. So your day-wise assignments are automatically streamlined. अगर आपको 5 दिन में कुछ करना है, तो day-wise आपको क्या करना है, automatically वो clear हो ही जाता है. Fine? Yes. Okay, Sahil is asking mapping के लिए क्या करें? I think we have already discussed this, Sahil. We have discussed this. Sir, is monthly current affairs sufficient? Divyang, what is your input on this? Rather than me answering everything, like a student is making this input regarding current affairs, although it is not pertinent to the topic that we are discussing, still you can answer it briefly. सर सफिशिएंट डिपेंड करता है किस वे में पूछ रहे हैं. ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, वो अच्छा होता है काफी, बट सप्लीमेंट इट विद डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज उसमें जो न्यूज़पेपर आप एक कोई भी पढ़ लो, रीड लाइक इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, छोटा न्यूज़पेपर होता है, दैट विल हेल्प यू फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूज़. तो उससे जो है वो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में आप जो है वो न्यूज़ की डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हो. दैट माइट हेल्प. उसको दोनों को मिला के चलोगे तो हो जाएगा काम. दैट विल बी इनफ. Okay, Shraddha, you can raise hand. I'll allow you to unmute.
अच्छा, now this is an interesting question, sir. Is it necessary for UPSC CSA exam cracking? Aspirant should belong to top colleges. मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना. जस्ट बिकॉज दिव्यांग इज एन IITian, जरूरी नहीं कि हर कोई एलिट इंस्टीट्यूशन से पढ़े. क्या बोलोगे दिव्यांग? सर मैं अभी कल मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ. दे आर ऑल्सो IPS एंड उनमें से जो एक बंदा है ही इज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का, कोई फैंसी कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है. स्टिल ही इज इन IPS. तो उसको इंटरव्यू में भी मार्क्स बड़े अच्छे मिले हैं, ऑप्शनल में भी बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, वो प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं हुआ है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स. दिस एग्जाम इज अ वेरी हम्बलिंग एग्जाम. बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड होती है. अगर कोई एक बंदा, टेक्निकल वाले बंदे जो होते हैं जो IIT से आते हैं, उनको बल्कि और चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज हम लोग जो है वो काफी टाइम से टेक्निकल एस्पेक्ट में जो है वो पढ़ रहे होते हैं rather than आंसर राइटिंग एंड अदर थिंग्स. तो जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको थोड़ा एडवांटेज होता है उस एस्पेक्ट में. तो ऐसा कुछ नहीं है. आप जब तक रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर पाओगे दैट इज इनफ फॉर यू. UPSC वालों को कोई मतलब नहीं होता है कि आप IIT से हो कि नहीं हो. तो इट ऑल डिपेंड्स. आप अपनी मेहनत के बल पे जो है वो वहाँ पे पहुंचते हो, और उसका कॉलेज से कोई मतलब नहीं है. So I hope that doubt is cleared. काफी बेसिक से डाउट होते हैं कुछ कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है उनको एड्रेस करना. शैलेंद्र, यू कैन अनम्यूट. ये सर, गुड इवनिंग सर. मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर, और मैंने पहले भी फॉर्म वगैरह फिलअप किया था मेंटरशिप के लिए. पर जब भी मेरे को आपकी टीम ने कनेक्ट किया तो वो बोले कि हम हिंदी मीडियम के लिए मेंटर नहीं करते हैं, इसलिए मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पाया था. और अभी जो क्वेश्चन सेशन वगैरह चल रहा था उस पर तो मैंने मतलब मेरा ठीक ही क्वेश्चन कर ले रहा था मैं. तो मेरा यही है सवाल कि यदि हिंदी मीडियम वाला ज्वाइन करता है तो सेशन वगैरह तो बाइलिंगुअल है और कंटेंट में बहुत इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे आप हेल्प कर पाएंगे मेरी इस शैलेंद्र? अभी हम जो हिंदी बात कर रहे हैं, दिव्यांग हिंदी में बात कर रहा है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. यस सर. तो बात तो हिंदी में हो रही है, इंग्लिश में हो रही है, बाइलिंगुअल हो रही है. राइट? So mentorship happens in two ways. One is your Zoom based mentorship, common Zoom call. So now this is a Zoom call, right? Yes sir. दूसरा तरीका है connecting with you on phone. Yes sir. Bilingual बात करी ही जा सकती है, ऐसा नहीं कि हम मेंटर्स को हिंदी नहीं आती. हाँ सर, पर मतलब आपकी टीम ने मेरे को पहले कनेक्ट किया था और मेरी उनसे बात हुई तो वो बोले कि हम हिंदी में मेंटर नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा. कंटेंट के बारे में शायद बोला होगा. कंटेंट इंग्लिश में होता है, कंटेंट हिंदी में नहीं होता. ठीक है? आपके टेस्ट वगैरह जो भी है, कंटेंट जो भी होगा, दैट वुड बी इन इंग्लिश. बाकी क्लासेस, सेशंस, इवन one-on-one mentorship call, that can be in English and Hindi. ठीक है? That shouldn't be an issue. Okay. साहिल, काफी है आज के लिए. अच्छा दिव्यांग, लास्ट एक या दो इनपुट ले लें. काफी सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं. देन वी कैन एंड इट. गाइस, कीप योर कैमरास ऑन. जिनके कैमरास ऑन है मैं उन्हीं के इनपुट लेता हूं. नाउ दिव्यांग इज शॉर्ट ऑन टाइम. आखिरी एक या दो सवाल मैं लूंगा. इफ यू कैन बी वेरी क्विक. अर्ली बर्ड कंसेशन वाला लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और मेरे टीम ने भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में. यू कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर. Rushikesh, very quickly. Yes, sir. Good evening, sir. I have been preparing for UPSC since 1 year, but that was my in Hindi medium. मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा था और अभी मैंने सितंबर 2023 से मैंने अभी स्विच किया है इंग्लिश में. तो इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है, तो मुझे ये आपसे ये एक पूरा फाउंडेशन कोर्स करना है जो कि मुझे 2025 में देना है अटेम्प्ट. तो सर मुझे 0 से आप लेकर जाइए ना, ऐसा है. Got it. Rushikesh, please drop your number in the chat box. My team will connect with you. अपना नंबर yes sir पंच इन कर दो वहां पे. हाँ yes sir. Fine guys. So I think we have discussed, we have addressed most of your doubts, and now because Divyang is short on time, we'll need to end. इसके अलावा guys, if there are any other doubts that remain, I hope you are part of my Telegram group. You can ping me in the Telegram group as well. So in short, just to summarize it very briefly, guys, we discussed 14 questions, 7 were PYQs, 7 were practice questions. We solved those practice questions in real time.
and we tried to understand the thought process of the paper setter and how do we align, how do we synchronize with those expectations of UPSC. And for that precise reason, Divyang will be discussing these learnings in greater detail in the upcoming classes. Also, you have access to my recorded sessions of Dominate Prelims and Predict Prelims workshop, apart from Divyang's recorded classes of Prelims Top 1% module. FLTs का access रहेगा. Apart from that, Divyang and I will be connecting with you live on Zoom. So this is all in short about today's session. Guys, I think we can end here. Divyang, Yes, thanks for connecting and sticking on for so long. Also, guys, thanks for connecting. And the session thoda sa lamba ho gaya hai. Thanks for sticking on till the end. Divyang, if you need to add anything at the end, otherwise we can end it. Sir, I think you have summarized it well कि जो आज का सेशन हुआ है उसी टाइप के हम लोग के लेक्चर्स होने वाले हैं, बिकॉज टेक्निक्स यूपीएससी को देख के काफी लोग बता देते हैं, बट हाउ टू एंश्योर कि जो टेक्निक्स हैं वो आप कैसे प्रेशर सिचुएशन में अप्लाई कर सको, उसके लिए ये कोर्स है कि आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा करवाएंगे हम लोग ऑन द सेम लाइंस, एंड दैट विल हेल्प इन एंश्योरिंग, हम लोग का यही बेस्ट एफर्ट होगा कि आपके 20-25 मार्क्स जो है वो एक्चुअल एग्जाम में बढ़े. So hope to see you all in the course. तब हम लोग बेटर कनेक्ट कर पाएंगे और आपके डाउट्स जो हैं वो हम लोग एड्रेस कर लेंगे सब उस टाइम पे. Fine guys, on this note we can end the session. Thanks for joining in guys. Chalo, good night. Take care guys.